After an absolutely scintillating first session at the British Airways Baithak this year, we now bring you our next session, titled Diwar, Khidki, Asman, a wall, a window, and the sky. We have with us today Mr. Vinod Kumar Shukla, Mr. Arvind Krishna Mehrotra, in conversation with Mr. Sati Khanna. So without further ado, I'm going to pass over the proceedings to Mr. Sati Khanna. This is a part of the Bhaskar Bhasha series. Thank you. You introduce him, and I'll say something about the poems. Should we? You introduce him, and then I'll say a few things about his poems, and then, yeah. And maybe I'll read a poem, so I can. ठीक. Yeah. I'll. हाँ, ये ग्रांटा की कविता पढ़ेंगे. हाँ, ग्रांटा की कविता. या, ग्रांटा की कविता पढ़ेंगे. दो हैं. नमस्कार, मैं सती खन्ना हूँ और इस सभा में आपका स्वागत करता हूँ. आभार है. सुनाई दे रहा है? आसानी से सुनाई दे रहा है? अच्छा. तो यहाँ खास स्वागत विनोद कुमार जी का है, जो कवि हैं, उपन्यासकार हैं, रचनाकार हैं. और इस सभा को देखते हमने ये योजना बनाई that most of the conversation we'll have with you will be in English, but we will have the reading of original poetry in Hindi, and when there is occasion for reference to the Hindi, we will refer to the Hindi. I hope you will find this bearable, because nothing, at least I render in English, matches the grace or subtlety or suggestiveness of what Vinod Shukla writes. So this is an accommodation to our multilingual audience rather than to the most effective method, which would have been simultaneous translation. We'll begin with Vinodji reading some poetry, followed by Professor Arvind Krishna Mehrotra reading his translations, and the conversation will then grow to include his prose, his novels, which I've had the privilege to translate. And towards the end of the session, we'd welcome conversation arising from what we have to say. But really, I think of this session, for those of you who don't already know Vinod Kumarji's work, as a window into his real and unreal vision of what is possible to human beings, even under conditions of privation. So, Vinod ji, agar aap वो विस्थापन वाली कविता मूल हिंदी में पढ़ें, फिर अरविंद जी से कहूँगा कि उसका अंग्रेजी. कौन सी कविता? ग्रंथ में आई. हाँ, मैंने कहा विस्थापन वाली कविता. हाँ 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 हाँ. So I've just asked Vinodji to read the original poem, which then Professor Mehrotra has translated. नहीं, वो तो बाद में पढ़ेंगे. अच्छा, मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद पढ़ूंगा. फिर आप. Well, this is all. This is
looks very complicated, but very soon we should settle into some kind of a rhythm. And it will be, Vinodji will be, any questions I put to him or Sati puts to him will be in Hindi and he will answer in Hindi. But we will try our best to translate his Hindi as quickly as we can into English. To start with, we have in the audience Ian Jack and Amit Chaudhary, amongst so many others, both of whom are associated, one as a contributor, one as an editor, with this issue of Granta. Granta, another India, another way of seeing. And the issue is going to be launched in a few days' time. But I just thought it would be nice to sort of steal the light and at least, if not release it now, read from it now. And so this is a sort of pre-launch party that we are having. And I would read, Ashok Bajpai suggested this, that maybe you should read the English first, followed by the Hindi translation. Is that all right? So I'll read a poem, actually two poems from Granta, the two poems of Vinod Kumar Shukla that have appeared in the issue. And, then he'll read I'll read one poem, he'll read the translation, I'll read another poem, and then he'll read the translation. And then I'll ask him a couple of questions about his poetry. At some point, I hope, Sati Khanna will step in and take over from there. Does it sound like a plan, as the Americans say? So I'll read these two poems. So this year too in the plains. Is there too much of an echo at the back? Or terrible echo. Is there an echo, or there is an echo? I can feel the echo. But so we can't do anything about it, can we? The other thing is to turn the mics off and see what the quality of transmission is. Okay, the first poem, This Year Too in the Plains. This year too in the plains, there are no mountains. For centuries, the mountains have stayed in one place. It's time they moved. The Vindhyas, for instance, should come closer to the bus stand and law courts. And the Satpuras go behind the village school or farm. The Himalayas seem unfair to a place that doesn't have the Himalayas. The Maidan seems unfair to a place that doesn't have a Maidan. Tata Nagar seems unfair to a place that is not Tata Nagar. This year, let this level ground be displaced, not to the Terai, but the Himalayas, the ground's highest point rising like a Himalayan peak. Let's have Bhopal this year, near Bakal and Paniyajog, Varanasi on the banks of the Mahanadi, Gariaband near the Ganga, Chandigarh near Sanchi, Nandgaon near Faridkot, and Madras next to Moradabad. All places should be displaced and brought near all other places, so that every place is near every other place, and not a single person is displaced from the village this year. ये कविता जो है विस्थापन की कविता है। एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षा के लिए चले जाने की कविता है। तो इस कविता में मैंने यह कहने की कोशिश की है कि अगर सभी जगह के पास हो तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोई बात ना हो और कोई कारण भी ना हो, तो ये 70 के आसपास की कविता है, जिसे अरविंद ने अनुवाद किया है। इसका अनुवाद कर दूं जल्दी से अनुवाद कर दूं जो आपने कहा। जी। Should I quickly try and translate what he's saying? I think Vinodji is, yes. No, we've decided to. No, I think we've done.
there would be some people who would not understand what Vinodji is saying. No, no, this is no, no, basically, very briefly, not to interrupt his flow, but unfortunately one will have to do that. What he's saying is that this is a poem of displaced people. Is it Sthapna ki, of people who are displaced, time and again for one reason or another. So the poem is based on the idea that if all places were next to each other, people would not have to move from place A to place B. I think this is what he's... Sati, would you want to add something to this? I think he's... I would have said this at some stage anyway, but the poetry and the fiction I'm interested in is mostly music. And what its subject is and what its narrative is for me trivial compared to the music flowing under it. So although the conversation is about people who is about, as he says abstractly, the idea of displacement, what's running under it is already gathering us together. That's my sense. मैं ये कविता पढ़ता हूँ जी। इस मैदानी इलाके में इस साल भी पहाड़ नहीं है। इस मैदानी इलाके में इस साल भी पहाड़ नहीं है। पहाड़ न जाने कब से वहाँ हैं जहाँ वे हैं। उन्हें अब हटकर होना चाहिए। मसलन विंध्याचल मोटर स्टैंड या कचहरी से सटकर गांव की पाठशाला या खेत के पीछे सतपुड़ा केवल। हिमालय वहाँ ज़्यादती है जहाँ हिमालय नहीं है। वह मैदान ज़्यादती है जहाँ मैदान नहीं है। टाटा नगर ज़्यादती है जहाँ टाटा नगर नहीं है। इस साल यह समतल विस्थापित हो हिमालय पर, तराई पर नहीं। चोटी पर इस मैदान का शिखर इलाका हो। भोपाल हो अब की साल बांकल या पनियाजोब के पास। गांव हैं राजनांदगांव के आसपास के, जहां का मैं निवासी हूं। गंगा के किनारे से हटकर काशी महानदी के पास। गरियाबंद गंगा से, चंडीगढ़ सांची से, नांदगांव से फरीदकोट और मद्रास से जुड़ा हो मुरादाबाद। सब जगह इस तरह से विस्थापित हो, सब जगह के पास कि सब जगह हो सब जगह के पास। और अकाल आतंक दुकाल में अब की साल गांव से एक भी विस्थापित न हो। दूसरी कविता पढ़। The second poem of Vinodji's that appears in this issue, this colorful picture, and it's an experience that all of us have had of walking an Indian street and finding and seeing these colorful pictures being sold on the footpath. This colorful picture picked up in the bazaar and hanging on the wall is of chubby, pink-faced children, so unlike our own, who are neither as chubby nor as pretty, nor wear such nice clothes. These pictures sell a lot. There's always someone in every family who'll feel as a father feels and bring one home. The truth is, though no one says it, they are all worried about their children. बाजार से खरीदी गई है यह टंगी हुई रंगीन तस्वीर, सुंदर गोल मटोल बच्चों की
अपने घर के बच्चे इतने सुंदर नहीं होते, वैसे जूते कपड़े और इतने स्वस्थ गोल मटोल भी नहीं होते। बहुत बिकती हैं इसी तरह बच्चों की तस्वीरें, इसे खरीद लेने का मन पिता के मन जैसा किसी का भी हो जाता है। घर घर अब तो आम हुआ है। दरअसल अपने अपने बच्चों की गुमसुम सब तरफ चिंता है। वही एक बार और पढ़िए। बाजार से खरीदी गई है यह टंगी हुई रंगीन तस्वीर, सुंदर गोल मटोल बच्चों की, कि अपने घर के बच्चे इतने सुंदर नहीं होते, वैसे जूते कपड़े और इतने स्वस्थ गोल मटोल भी नहीं होते। बहुत बिकती हैं इसी तरह बच्चों की तस्वीरें, इसे खरीद लेने का मन पिता के मन जैसा किसी का भी हो जाता है। घर घर अब तो यह आम हुआ है। दरअसल अपने अपने बच्चों की गुमसुम सब तरफ चिंता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था। मैं विनोद जी से एक सवाल करना चाह रहा था बहुत दिनों से। So there's a question which I had wanted to ask him, as how I first came to his poetry. What is the first line of his that stayed in my head? And it's one of the most renowned lines of Hindi, modern Hindi poetry, or 20th century Hindi poetry. And the line is, "वो आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह." And I have the poem before me. I can't remember if it appeared in Lagbhag Jai Hind. Lagbhag Jai Hind भी थी ये कविता? So well, there are actually two questions. One question, of course, I can't ask Ashok because he's sitting there. So Vinod ji will have to answer. I'll read the poem. I don't know if Vinod ji has the translation or the original of. कविता है यहाँ, है इनके पास? है, पढ़ के सुनाइए। हाँ, तो पहले आप पढ़िए, पहले आप हिंदी का पढ़िए, फिर मैं अंग्रेजी का अनुवाद पढ़ूंगा, अगर आपके पास कविता है। ये कविता है, अरविंद मल्होत्रा ने मेरी जिन कविताओं का अनुवाद किया है, उस करीब सभी कविताएं 1960 के आसपास की हैं। बहुत पुरानी कविताएं, शायद 50-55 साल हो रहे होंगे। तो ये जो कविता है, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। अशोक वाजपेयी ने इस किताब का संग्रह लगभग जय हिंद में पहले तो किया ही था, और इसी शीर्षक से, एक लंबे शीर्षक से एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ। तो ये कविता है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, रबर की चप्पल पहनकर मैं पिछड़ गया। जाड़े में उतरे हुए कपड़े की सुबह 6 बजे का वक्त, सुबह 6 बजे का वक्त, सुबह 6 बजे की तरह पेड़ के नीचे आदमी था। कोहरे में आदमी के धब्बे के अंदर वह आदमी था। पेड़ का धब्बा बिल्कुल पेड़ की तरह था। दाहिने रद्दी नस्ल के घोड़े का धब्बा रद्दी नस्ल के घोड़े की तरह था। घोड़ा भूखा था, तो उसके लिए कोहरा हवा में घास की तरह उगा था, और कई मकान, कई पेड़,
सड़कें इत्यादि कोई घोड़ा नहीं था, अकेला एक घोड़ा था, मैं घोड़ा नहीं था, लेकिन हाँफते हुए मेरी सांस हूबहू कुहरे की नस्ल की थी। यदि एक ही जगह पेड़ के नीचे खड़ा हुआ वह मालिक आदमी था, तो उसके लिए मैं दौड़ता हुआ जूते पहने हुए था जिसमें घोड़े की तरह नाल ठुकी थी। Well, this is my sort of approximation of this incredible poem. The man put on a new woolen coat and went away like a thought. In rubber flip-flops, I struggled behind. The time was 6 in the morning, the time of hand-me-downs, and it was freezing cold. 6 in the morning was like 6 in the morning. There was a man standing under a tree. In the mist, it looked like he was standing inside his own blurred shape. The blurred tree looked exactly like a tree. To its right was a blurred horse of inferior stock, looking like a horse of inferior stock. The horse was hungry. The mist like a grassy field to him. There were other houses, trees, roads, but no other horse. There was only one horse. I wasn't that horse. But my breath when I panted was indistinguishable from the mist. If the man standing under that one spot was the master, then to him I was a horse at a gallop, horseshoes nailed to my boot soles. So now your question to him. I have a question. जो विनोद जी से मैं सवाल पूछना चाह रहा था कि ये जो पंक्ति है, जो पहली पंक्ति है, ये आपको आई कैसे? ये तो बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, इसका what I'm asking him is that impossible question, which is how did that line come to you? वो आदमी चला गया. To frame that question slightly differently, what was the literary context in which the line came to you? कि उस ज़माने में क्या वो साहित्यिक संदर्भ था जिसमें आप this is dated 1964, 1964 की कविता है ये. तो वो कौन सा साहित्यिक संबंध था, संसार था राजनांदगांव में, जहाँ पे आप शायद उस समय रहते थे, कि ये पंक्ति उसका कॉन्टेक्स्ट, लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट क्या था? अरविंद जी, ये तो बहुत असंभव सा प्रश्न है, और मेरे जैसे उस आदमी के साथ में जिसका स्वभाव ही भुलक्कड़ है, तो अब ये जो है बता पाना, एक तो कविता लिखने का कारण बता पाना या रचना का कारण बता पाना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है. अगर कहीं ये मालूम होता कि ये रचना का कारण होगा, तो मेरा ख्याल है कि जैसे एक फूल के दिख जाने के बाद में हम सुंदर लगने के बाद हम उसकी तस्वीर खींच लेते हैं, अगर कहीं कोई कारण मालूम हो जाए तो हम तत्काल उसी तरह एक तस्वीर की तरह उसको एक रचना के रूप में खींचकर अपने पास में लिख करके रख लेते. लेकिन ये बिल्कुल उस तरह से तो संभव है ही नहीं. असल में होता क्या है कि बहुत से कारण होते हैं. रचना जो है बहुत तात्कालिक कारणों से तो संभवतः लिखी भी नहीं जा सकती और लिखी जाती भी नहीं है. खासकर मैं अपने संदर्भ के में से मैं कह रहा हूँ, न मालूम कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन तब भी तात्कालिक रूप से उसकी प्रतिक्रिया एक रचना के रूप में होना तो बहुत कठिन होता है. एक विचार के रूप में हो सकता है, लेकिन सभी विचार रचना के तौर पर हों तो ये होता ही नहीं है. दरअसल हमारे सामने जो विचार जो होते हैं वो रचना बनाने में कुछ कारणों से कभी रचना का जो एक समय उपस्थित होता है, और वो जो समय उपस्थित होता है वो तो वैसे तो हर समय रहता है, लेकिन वो रचना का समय तो कभी कभी ही उपस्थित होता है जब आप रचना को लिखना शुरू करते हैं और रचना हो जाती है.
लेकिन कोई भी रचना जो है पूरी तरह कभी समाप्त होती नहीं है। जो कुछ भी लिखा जाता है उस पर लिखने के लिए आदमी तो सारी ज़िंदगी एक ही कविता को बार बार लिख सकता है। मैं अपनी कविता को, एक ही कविता को मैं बार बार लिख सकता हूँ। इसलिए जो है ये कह सकना कि रचना लिखी जा चुकी है, ये मेरा ख्याल है कि ठीक मुझे लगता नहीं। जी जी। So the context for the poetry is his whole life, and each poem is another expression of that life. And the hope of finding individual context for some literary stirring seems inappropriate to somebody as forgetful as Vinod Kumar ji, or so he says. तो मैं भी एक सवाल कर सकता हूँ, क्योंकि कविता की चर्चा हो रही है कि आप कब तय करते हैं, आप कहते हैं कि इतना कुछ अपने आप होता है, अचानक होता है, कि कब तय करते हैं कि गद्य में रचना करनी है या कविता लिखेंगे? कब तय करते हैं कि उपन्यास लिखना है या कहानी लिखनी है? यह भी बता पाना मेरे जैसे लेखक का, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी एक असंभव सी बात है। मैं ये मान करके चलता हूँ, क्योंकि देखिए कविता एक स्वरूप की तरह है, जैसे गाय एक स्वरूप की तरह है जिसे बता दिया जाता है कि ये गाय है, और ये हम शुरुआत से अपनी भाषा में, शब्दों में उस स्वरूप को हम पा लेते हैं दूसरों के लिए भी, और ये शब्द जो हैं अभिव्यक्ति के कारण बन जाते हैं। तो जब ये जो लिखने का जो स्वरूप जो होता है, ये एक बारगी वैसे तो तय होता नहीं है कि मुझे उपन्यास लिखना है या कविता लिखना है। मैं लिखना शुरू करता हूँ और लिखने में ये लगने लगता है कि ये लिखा हुआ अपने स्वरूप में संभवतः जो मन में कहीं न कहीं से अंकित जैसा है वो स्वरूप की ये कविता का स्वरूप होता है। एक तो ये एक आदत सी बन गई है देखने की और पढ़ने की कि कविता अत्यंत जो है कम से कम शब्दों में बनता है, ये बहुत थोड़ा होता है, और ये कम से कम शब्द कुछ उसका गठन कुछ इस तरह से होता है कि न मालूम जो है वो उसमें बहुत से अर्थ जो हैं अलग अलग पाठकों के लिए कभी भी उसी तरह से उपस्थित हो सकते हैं जैसे कुआं में जल का स्रोत होता है। कुएं का पानी कभी भी बासी पानी नहीं होता, उसका पानी जब भी निकाला जाता है उसमें जबकि रखा हुआ पानी है, स्टोर्ड पानी है, लेकिन उसमें पानी एक ताज़ा पानी से उसका जो एक स्रोत जो है बना हुआ रहता है। वो ऐसा लगता है कि जैसे वो बदलता हुआ सा पानी है कि पुराना होता है और चला जाता है। कविता के साथ में भी बिल्कुल वैसा ही है। कविता कभी भी जब भी पढ़ी जाए और जिसको जब भी जितनी प्यास होती है उसी तरह कविता जो है उस पाठक को जो कविता को पढ़ना चाहता है या वो जो कविता के समीप आना चाहता है अपनी प्यास में, कविता की प्यास में, तो वो कविता जो है उसकी तब भी उसी तरह एक ताजे अर्थ के साथ में जो उससे रिस रहा होता है कविता में, उसके लिए तब उस समय उसकी प्यास के लिए तो वो उससे अपने आप को तृप्त कर लेता है। तो मैं कब गद्य लिखूँगा और कब कविता लिखूँगा ये मैं मान करके चलता हूँ कि कविता का जो स्वरूप जो है, ऐसे में मुझको लगता है कि गद्य का लिखना जो है एक प्रकार की खनन प्रक्रिया है। एक और जो कविता जो है कि चूँकि वो बहुत संक्षिप्त होती है और ऐसा लगता है कि वो बहुत गहराई में होती है, तो जब तक हम उस खनन प्रक्रिया से न गुजरें तब तक तो ऐसा लगता है कि हम कविता तक पहुँचते भी नहीं हैं। इसलिए मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं जब भी कविता लिखता हूँ तो मेरे लिए गद्य का लिखना बहुत आसान हो जाता है। मैं कविता के समीप पहुँचने के लिए गद्य के लिखने को एक बहुत बड़ा एक अगर कहीं ये तरीका है तो मैं इसको एक तरीके के रूप में मैं मानता हूँ कि कविता के समीप पहुँचने का, कविता लिखने के लिए मेरे जैसे आदमी के लिए गद्य लिखना बहुत ज़रूरी हो गया है। और कई कारणों से ये गद्य लिखना, पहले तो मैं कहानियाँ लिखता था, शुरुआत तो कविता लिखने से मैंने की, कहानियाँ भी मैं लिखता था, प्रकाशित कहानी
पहले हुई, कविता बाद में प्रकाशित हुई, लेकिन तब भी मैं ये मान करके चलता हूँ कि कविता लिखना मेरी जो है अगर कहीं कोई मुझे इस तरह से कहे कि मैं कवि हूँ तो शायद मुझको ज़्यादा अच्छा लगेगा। So, his vocation, Vinodji's vocation is poetry, and its slenderness and hosting of possibilities is, uh, is, is what draws him, and for him prose is a preparation for that kind of slenderness and economy. He says that that brief small poem is like an inexhaustible well whose water is fresh each time a reader comes to it. Inexhaustible, fresh water. And to be regarded as poet for him means most of all. That's my sense of it. So I do want him to talk about his prose too, maybe out of a vested interest. I find it delicious. We are struck with the problem that we both forgot our bags. He doesn't have the originals of things to which I have translations, and I don't have translations of the books of which he has originals. So I'd like to ask him something about what he's working on now, and then perhaps if there's occasion we can both read you some sections from his extraordinary Naukar Ki Kameez, which got me addicted to his work, and then perhaps something from my translation. If somebody has Khilega to Dekhenge here with them, there's a particular section of old people playing flutes which I'd love to have him read to us. But anyway, my question to him now is, विनोद जी बताइए अभी क्या लिख रहे हैं और कैसा लग रहा है, कुछ अभ्यास में तरक्की हुई? अभी मैंने एक उपन्यास तो मैंने लिखा, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। उसके बाद में कुछ ऐसा कारण बना कि मैं किशोर लोगों के लिए, ये जो उपन्यास है किशोर, बड़ों और बच्चों का उपन्यास है। इसमें पाठक पर इस तरह से जो है मैंने कहा है कि तीनों, यद्यपि बच्चों की किताब में ये धारावाहिक चकमक जो भोपाल से निकलती है उसमें ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था, फिर उसके बाद में मैंने चकमक में ही दूसरा उपन्यास मैंने लिखना शुरू कर दिया। तीन बेटियों की कहानी है, तीन बहनें हैं, और ये हर महीने इसकी एक एक कहानी प्रकाशित होती थी, अपने आप में पूरी कहानी। और ये 24 कहानियों का एक उपन्यास है जिसमें सभी कहानियों का एक सूत्र बनता है, औपन्यासिक सूत्र जो बनता है, जो इन कहानियों को बांध करके रखता है, और किताब के रूप में वो पांडुलिपि तैयार हो गई है, जो संभवतः अभी प्रकाशन के लिए तैयार हो जाए। तो एक तो मैं ये उपन्यास में लिख रहा हूँ, एक उपन्यास मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में था, वहाँ मैंने शुरू किया। ये उपन्यास बूढ़े पति पत्नी का एक ऐसा उपन्यास है कि जब उनको इस बात का ये एहसास हो जाता है कि अब ज़िंदगी थोड़ी सी बची हुई है, तो ये जो सारी ज़िंदगी का अधिकांश हिस्सा जो है इसी ऊहा-पोह में चला गया कि कुछ इकट्ठा कर लेना चाहिए, कुछ जोड़ लेना चाहिए अपनी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए। कुछ कर नहीं सके ज़िंदगी में दूसरों के लिए, अपने लिए तो ये सब किया, दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। तो क्यों ना हम दोनों पति पत्नी तय करते हैं कि ये मान लें कि अब जो ज़िंदगी बची है हम उसको इस ज़िंदगी से छोड़ करके किसी दूसरी ज़िंदगी में पहुंच गए हैं, ऐसा हम जीवित रहते हुए क्यों ना मान लें। परलोक में जाने की बात हम इस अपने को आपको जीवित रहते हुए हम क्यों ना मान लें। तो ये दोनों जो है, जो कुछ उनका अपना है इस संसार में, उनका बेटा है, बहू है, परिवार है, इसको वो छोड़ करके चले जाते हैं एक अजनबी जगह, एक अजनबी सी दुनिया में, जो उनके बूढ़े शरीर को के लिए जो एक बहुत कठिन समय होता है। लेकिन उस कठिन समय भी वो किस तरह दूसरों के लिए क्या करने की और कैसा करने की जो कोशिश करते हैं, ये
उस तरह का उपन्यास है। तो ये मैं अभी You should translate this, yeah. So he's working on two novels, one about three sisters, a string of stories, I think 24 of them, linked by a thread. He's working on a novel about two old people who now find their bodies to be imprisoning and who decide to consider that they have transmigrated to that other finer world from which they can conduct their lives, what's called Parlok. And as far as I can tell from just his description, that their view of what appropriate action is, what their dharma or kartavya is from this Parlok, is some of the melody of that work. I'd like to ask him to read just a passage, we don't have an English translation, from his book, Hari Ghas Ki Chhappar Wali Jhonpadi or Bona Pahad. One of the characters in the school in this book has a father who runs a hotel, Bajrang Hotel. I don't know what his name is, but he's also known as Bajrang. So I just want him to read this passage of the kind of hotel it is, its furniture, its veranda, its light. ये दो पैराग्राफ जरा पढ़ दें। ये एक बहुत मज़ेदार टुकड़ा है। एक अत्यंत दूर के देहात में एक बजरंग होटल है, उसका वर्णन है ये। सत्य जी बात कर रहे थे कि जिसका अनुवाद होना कई बार बहुत मुश्किल होता है, उसका भी अनुवाद करना पड़ता है। ये सत्य जी अनुवाद कर रहे हैं इस किताब का। तो मैं ये एक जो है पैराग्राफ जो है मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। बजरंग होटल के सामने भट्टी बनी थी, टीन छप्पर से ढकी हुई। फिर एक बड़ा बरामदा था, बरामदे में लकड़ी की बेंच और आड़ी टेढ़ी टेबलें रखी थी। सभी टेबलें ऐसी थीं कि अपने पाए पर बस टिकी हैं, हिलती डुलती थी। एक कप चाय टेबल पर रखते तो टेबल इस तरह धीरे धीरे हिलती जैसे धीरे धीरे फूंकने से चाय हिलती है, और टेबल के स्थिर होते ही चाय पीने लायक ठंडी हो जाती थी। टेबल पर यदि भजिया की प्लेट अभी स्थिर रखी है तो एक भजिया उठाने के बाद टेबल के हिलने पर प्लेट कुछ सरक जाती और बिना देखे अंदाज से दोबारा भजिया उठाते तो अंदाज गलत हो जाता। यही हाल बेंच का था। बैठे बैठे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते तो बेंच हिलकर ऐसी हो जाती थी, बैठे बैठे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते तो बेंच हिलकर ऐसी हो जाती थी कि सामने की अपनी प्लेट की जगह पड़ोस की प्लेट आ जाती थी। टेबल पर पानी का गिलास नहीं रखा जाता था, गिलास रखते ही लुढ़क जाता था। पानी से भरे गिलास बरामदे पर चढ़ने उतरने के लिए रखे पत्थर के पास रखे जाते थे। ग्राहक बरामदे में चढ़ते समय पानी पीकर गिलास वहीं रख देते। बरामदे से उतरते समय भी यही होता। बजरंग महाराज ग्राहकों की हरकतों पर कड़ी नजर रखते थे। Can you translate the gist of it very quickly? I'll do it in a minute. So, for those of you who know Hindi, I know this is a little biased, but now, जैसे बच्चों की किताब है ना, और हमने ये पढ़ा, आनंददायक है, हंस रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। अब देखिएगा कि अगला पैराग्राफ किस मूड को पेश करता है, सिर्फ जैसे कि आपको अंदाज हो कि बच्चों की किताब में क्या छिपा है। अब ठीक इसके बाद वाला पैरा पढ़िए। बरामदे के बाद एक कमरा था। बरामदे का उजाला कमरे के दरवाजे से उतना ही जाता था कि इतना ही बचा है। कमरे के अंदर प्रायः अंधेरा ही रहता, जिसमें थोड़ा
कभी मिला दिया जाता हो। शाम को कमरे के अंदर एक फीका बल्ब जलता था जो यह देखने के लिए जलाया जाता कि अंधेरा कितना है। बरामदे में ट्यूबलाइट जब तक जलती कमरे का बल्ब नहीं जलाया जाता। कभी ट्यूबलाइट रात भर जलती जो तब चारों तरफ के घनघोर अंधेरे में कई दिनों से भटके हुए लोगों को सहारे की दिख गई उजाले की तरह होती। घनघोर जंगल के बीच यहाँ जो कुछ भी है भटक कर आई हुई जैसी है। बिजली भी भटक कर आई हुई जैसी लौट जाने के लिए जब तक आती जाती हुई। यही कि रचना के बीच कभी ट्यूबलाइट रात भर जलती जो तब चारों तरफ के घनघोर अंधेरे में कई दिनों से भटके हुए लोगों को सहारे की दिख गई उजाले की तरह होती। अनुवादक का काम है कि इन चीज़ों का यानी इन चीज़ों को जोड़ना, लेकिन जो विस्तार है इधर कल्पना का बहुत कठिन है, यही कह रहा हूँ। तो कैसे अभी अनुवाद नहीं करूँगा क्योंकि कुछ 10 मिनट बचे हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ प्रश्न है विनोद कुमार जी के लिए या हम लोगों के लिए तो आप पूछ सकें या कुछ टिप्पणी कर सकें कि बातचीत कैसे चल रही है। तो अगर कोई प्रश्न हो या कोई विचार हो अभी पेश करने का तो क्या 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 जरिया क्या है जी? कुछ लेखकों का सफ़र सरल से जटिल की ओर और कुछ का जटिल से सरल की ओर होता है और कुछ के सफ़र में जटिल और सरल का हमेशा ही समागम रहता है। आपका सफ़र कैसा रहा है? मैं समझ नहीं पाया मैं आपके प्रश्न। मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कुछ लेखकों का जीवन सफ़र या साहित्यिक सफ़र सरल से जटिल की ओर रहता है और कुछ का जटिल से सरल की ओर। अपने साहित्य में वो कुछ सरल से जटिल की ओर जाते हैं, कुछ जटिल से सरल की ओर, विषय के मायने में या लेखनी के मायने में। आपका सफ़र कैसा रहा है? मैं बहुत अच्छे से तो समझ नहीं पाया हूँ आपके प्रश्न का, लेकिन तब भी मैं कहना चाहता हूँ कि दरअसल हम जो कहना चाहते हैं उसको हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। मुख्य चीज़ है अभिव्यक्ति, लेकिन ये जो अभिव्यक्ति होती है रचना की अभिव्यक्ति होती है। मतलब किसी को समझाने की बात नहीं होती है कि क्या सरल है, उसको क्या किस तरह से उस सरल को उस कठिन को या इस तरह से कोई समझाने जैसी बात होती है। कविता या रचना को समझाने का काम नहीं होता है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप रचना को जिस तरह जैसे आप अभिव्यक्ति के रूप में पा रहे हैं वैसा ही पाना उनको दिखाना चाहिए। लेकिन अगर कहीं आप उसको सरल करना चाहते हैं तो अपने लिखे हुए का अनुवाद ही कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि ज़्यादातर लोगों के बारे में, मेरे बारे में भी ये प्रायः और हमेशा कहा जाता है कि मेरी रचना समझ में नहीं आती है, मुझको ऐसा लिखना चाहिए कि लोगों को समझ में आए। ये इस तरह के बात आलोचक कहते हैं। तो अगर कहीं मैं दूसरों को समझ में आने के लिए लिखना शुरू कर दूं तो ये तो वही हुआ कि मैं जो लिखना चाहता हूं उसका अनुवाद करके लिखूं। लेकिन ऐसे में तो मेरा मूल लेखन तब कहाँ या कैसा होगा, ये भी एक प्रश्न सा होता है कि मुझे ये दूसरे जो होते हैं वो इतने दूसरे और इतने अलग अलग होते हैं कि प्रत्येक जो दूसरे जो होते हैं जो रचना को पढ़ते हैं अपनी तरह से रचना को पढ़ते हैं और रचना को वो जो चाहते हैं और जितना चाहते हैं उतना ही पाते हैं। जो नहीं पाते हैं, मुश्किल ये है कि रचित इतना सारा कुछ है, प्रकृति में सारा कुछ इतना ज़्यादा रचित हुई है। जो हम नदी देखते हैं वो रचित है, जो पहाड़ हम देखते हैं वो रचित है। अब आप ये बताइए कि हम जब पहाड़ को देखते हैं तो पहाड़
समझ में आता है। अगर कोई कहे कि भाई ये पहाड़ है तो ये रचना है, तो क्या तुमको समझ में आता है? तो हर पहाड़ जो है हर लोगों को अपनी तरह से समझ में आता है। जो सूर्योदय है हर लोगों को हर दिन जो नया और जैसा होता है अलग अलग तरीके से समझ में आता है। तो ये समझ में आने वाली बात रचना के साथ में नहीं होना चाहिए। ये रचना के साथ में आप किस तरह और कैसे जुड़ते हैं, ये एक संदर्भ बनता है, एक जो संदर्भ बनता है एक दूसरे से पाने का, वो बनना चाहिए। जी। माई सेल्फ अब्दुल सत्तार सिलावट, चीफ एडिटर दैनिक महका राजस्थान। आज के माहौल में जो ऑडियंस आपके साथ बैठी और आपकी एक एक पंक्ति को जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि आज जो हम सीरियल देख रहे हैं टीवी के ऊपर, क्या उन सीरियल के मुकाबले में हमारी ज़िंदगी की हकीकत क्या पेश नहीं की जा सकती? क्या इस तरह की चीज़ें जिसको सत्यजीत राय ने आज से 50 साल पहले पेश किया, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, क्या आप जो टेबल की हिलती हुई कप की प्लेट की जो झलक दिखा रहे हैं, क्या इसको किसी सीरियल में नहीं डाला जा सकता? मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि आज की मौजूदा ऑडियंस तो आपकी हर बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन ये चमक दमक और रात को सोते हुए मेकअप करने के ये जो टीवी सीरियल है, इनके बीच में ये चीज़ें कैसे आ सकती हैं? प्लीज़। मैं नहीं समझा। आप समझे? मैं समझ नहीं पाया। अब आप नहीं दोहराइए मत, दोहराइए मत। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज के साहित्यिक सम्मेलन के अंदर आपकी एक एक लाइन को जो सुन रहे हैं, वो 365 दिन धारावाहिक सीरियल देखने वाले लोग हैं, मजबूरी में देखते हैं या किस तरह से देखते हैं, लेकिन आपकी बात को जिस तरह से हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या समाज को इस तरह की चीज़ें धारावाहिक टीवी सीरियल के अंदर दूरदर्शन या और जो सीरियल्स बनाने वाली कंपनियां हैं और जो प्रोडक्ट देने वाले लोग हैं, क्या इन चीज़ों को टीवी सीरियल में डालकर हमारे समाज को पेश नहीं कर सकते क्या? इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। शायद मेरी बात समझे होंगे आप। देखिए, मैं जितना जो कुछ भी समझ पाया, यद्यपि मैं समझ नहीं पाया, ये मैं लेकिन तब भी जो कुछ भी जैसा जितना मुझे लगा कि जो कुछ भी मैं लिखता हूँ, क्या उसे दृश्य के माध्यम से लोगों को बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता। एक चीज़ मैं भी आपको मैं कह देना चाहता हूँ, जो मेरे सोचने का तरीका है लिखने के में, जब मैं लिखता हूँ तो जब मैं सोचता हूँ तो मैं दृश्य में सोचता हूँ, लोग भाषा में सोचते हैं, लेकिन मैं तो एक गाँव का देहाती आदमी हूँ। मेरी ये सोच का जो तरीका है, ये आदिम सोच का तरीका है, जब भाषा नहीं थी। मुझे इस बात का अंदाज तो बाद में हुआ, जब लोगों ने मुझसे जब ये पूछना शुरू किया, तो मैंने ये सोचा कि आखिर मैं भाषा में क्यों नहीं सोच पाता। जिस दरवाजे के बारे में लिखना चाहता हूँ वो दरवाज़ा मुझे दिखाई क्यों देता है, जिस पेड़ के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ तो वो पेड़ मुझे दिखाई क्यों देता है, जिस मनुष्य के बारे में जिसको मैं अपना पात्र बनाना चाहता हूँ वो मुझे दिखाई क्यों देता, वो पसंद नहीं आता है, तो मैं उसके रंग रूप को बदल देता हूँ। एक दूसरा आदमी मेरे रंग रूप के अनुसार फिर उपस्थित हो जाता है। मैं एक काला आदमी चाहता हूँ तो काला आदमी आएगा। तो जिस तरह मैं एक मोटी नाक वाला एक आदमी चाहता हूँ तो मेरे दृश्य में तो एक मोटी नाक वाला आदमी आएगा। तो ये कि मैं दृश्य में सोचता हूँ। शायद मेरा ख्याल है कि यही एक कारण हो कि नौकर की कमीज जो उपन्यास जो मैंने लिखा, वो मणि कौल को शुरू से ही पढ़ने पर जब उपन्यास को उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि इस पर फिल्म बनाना हो। पता नहीं कैसे कुछ फिल्म वालों की मेरे ऊपर कुछ रुचि भी हो गई है, वो इस पर काम करना भी चाहते हैं, जो कुछ भी या जैसा भी है। तो एक तो ये है कि उनके लिए शायद ये आसान होता होगा कि अगर मैं उसी तरह का लेखक हूँ कि अपने सामने दृश्य को पैदा कर उस दृश्य को लिखता हूँ, तो अच्छा, फिर मेरे लिखने में पहले से तय कुछ भी नहीं होता है, तो कोई योजना नहीं होती है मेरे लिखने में। मैं कभी योजना बना करके लिखता नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह की है। मैं सारे रचनाकार को अपने समीप पाता हूँ। मैं शिल्पकार
कि एक शिल्प बनाने को अपने लिखने के तौर तरीके के साथ ही समझता हूँ। शिल्पकार के पास में जब एक चट्टान का टुकड़ा होता है, एक पत्थर का टुकड़ा होता है, तो उसे मालूम नहीं होता है कि वो क्या बनाने वाला है। तो पहली बार जो छेनी हथौड़ी चलती है उसमें उतना ही दिखता है उसे कि वो दूसरी बार छेनी हथौड़ी चलाए वो। फिर हर बार के छेनी हथौड़ी चलाने के बाद में वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और पहले से चले हुए छेनी हथौड़ी जो है उसको रास्ता दिखाते हैं कि अब तुम इस तरह से तुमको अपनी छेनी को मारना है और तुम जो करना चाहते हो रचना के रूप में वो तुम उसको पा सकोगे। तो वही काम मैं भी करता हूँ। मैं भी उसी तरह से जो है मैं जिसको देख लेता हूँ उसको लिखना मैं शुरू कर देता हूँ। मैं पेंट नहीं कर सकता तो मैं उसका चित्र भी बना सकता, लेकिन मैं चूंकि शब्दों में लिख सकता हूँ इसलिए मैं उसे शब्द में लिखने की अपने दृश्य को जो देखता हूँ करता हूँ। I'll try and translate this very quickly. So just a brief translation. So Vinodji says that he sees what he renders in pictures. He finds that he's puzzled why he doesn't compose in words, but why the image dawns on him first. And he thinks of himself as accessing that primal condition of perception, which could express itself in words or in images. Were he not a wordsmith but a painter, that same primal image would find form in words. And he doesn't set out with a plan of action. He makes the first movement, and that guides him to the second, and this is his method of composition. I'd like to close here just because this is such a resonant, moving statement. I'd like to close here anyway, unless there are questions. Are there questions? Sure. Okay. Hello. Yeah, my question is to Mehrotra sir. Sir, one attributes a certain level of modernity to Indian poetry these days, Indian poetry in English. So how much does that one owe to the brilliant translations done by you, Ramanujan or Kolatkar sir? I would like your views on that, sir. इससे हमसे पूछो? Yes, sir. No, don't ask me any questions. Ask questions to Vinodji. Leave me out of this. I had a question. No, for you. it's not my session. विनोद जी, मेरा प्रश्न आपसे ही है। आपने वो जो 2 पैराग्राफ पढ़े थे वो बच्चों की किताब में से थे। तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ आपसे कि बच्चों की किताबें वर्णन बहुल हो या घटना प्रधान हो। आप लिखते हैं, मैं पढ़ाती हूँ। वो पुस्तकें जो वर्णन प्रधान होती हैं, दर्शन बहुल होती हैं, बड़ा कठिन होता है उनको क्लासरूम में रखना। तो मैं अकिंचन भी उन लोगों में से हूँ जो खेलेगा तो देखेंगे, एक सीमा के बाद समझ नहीं पाई। मैंने बार पढ़ा उसको, शायद एक बार पिछली बार आपसे कहा भी था कि मैं समझ नहीं पाई। इसी तरह दीवार में एक खिड़की रहती थी, अंत में जाकर के मैं लड़खड़ाने लगी, बार कोशिश की लेकिन नहीं। तो आपने जो 2 वर्णन पढ़े, तुरंत मुझे लगा कि ये मैं कहानी क्या ईदगाह की तरह क्लास में रख सकती हूँ बच्चों के सामने? नहीं। ये आपकी हिम्मत पर निर्भर है ना, इन्हें कहना चाहिए कि बात हिम्मत की नहीं है, मैं तो उनको मंटो की खोल दो भी पढ़ा दूँ। बात हिम्मत की नहीं, एक अध्यापक को हिम्मत चाहिए ही। जिनमें हिम्मत नहीं है वो अध्यापन ना करें। प्रश्न ये है कि घटना है नहीं, वर्णन है, उन्हें मैं कितनी दूर तक ले जा सकती हूँ बिना घटनाओं। देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी और संक्षिप्त सी मैं बात अपनी रखता हूँ। लेखकों से तो बहुत अपेक्षाएं की जाती हैं, ये सारी की सारी अपेक्षाएं तो बहुत बाद की हैं। मेरा ख्याल है कि और इन अपेक्षाओं का तो कोई अंत नहीं है। दूसरी बात कि कुछ भी एक में लिखे हुए सब कुछ पूरा नहीं होता है। कोई भी किताब किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं होती, मैं ये मान करके चलता हूँ। फिर उसके बाद में आप
रचना को हमारे यहाँ की पढ़ाई लिखाई में यही होता है कि हम रचना को समझाने का काम करते हैं। अगर कहीं समझाने वाला या पढ़ाने वाला या शिक्षक अगर कहीं उसको नहीं समझ पाता है तो उसके लिए बड़ी कठिनाई होती है, जो विद्यार्थियों की कठिनाई बन जाती है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि विद्यार्थियों के साथ में अगर ऐसा कोई कारण बनता है शिक्षा का, तो उन लोगों को किसी भी रचना को समझने का काम करना चाहिए, समझाने का काम नहीं करना चाहिए। दरअसल हम लोगों को किसी भी रचना को पढ़ते समय जिनको पढ़ा रहे हैं आप, उनको उस रचना के साथ में शामिल करके यह पूछना चाहिए। मैंने हबीब तनवीर को मैंने देखा जब वो नाटक करते थे। हबीब तनवीर जो हैं वो अद्भुत व्यक्ति थे। उनकी रचनात्मकता का जो कारण था वो एक एडिटरशिप का था। वो कैसे, मतलब ये कि वो रचना, जो पात्रों में जो रचनाएं हैं, जिन पात्रों को वो लाना चाहते हैं, वो उसमें से वो चुना करते थे। तो मैंने एक नाटक मैंने देखा था, तो अपने पात्रों से कहते थे कि भाई तोला आ करके पेड़ के नीचे खड़े होकर के, तो यही तोर काम है कि ते पेड़ के नीचे आकर के खड़े होकर के दिख जा। तो अब ते कैसे दिख बे ये बता, अब तुम ये कैसे दिखोगे, तुम ये बताओ। तो वो कलाकार आता था और एक पेड़ अपने आप स्थापित हो जाता था। मंच पर होता नहीं था पेड़, लेकिन उसकी चाल ढाल से एक पेड़ वहाँ पर स्थापित हो जाता था और वो पेड़ के नीचे अपने को खड़ा कर लेता था। फिर हबीब तनवीर कहते थे अब ये बताते दूसर तरीके से कैसे आ सकता है। मान लो कि पेड़ बड़ा है, जैसे बरगद होते, पीपल होते थे, तो फिर कैसे करवे? तो वो दूसरी तरह से आकर के बतलाता था, फिर तीसरी तरह से आकर के बतलाता था। तो हबीब तनवीर उसमें से कोई एक तरह जो है वो अपने नाटक में रख लेते थे। तो ये था, तो क्या था कि किसी रचना को पाने के लिए, किसी अर्थ को भी पाने के लिए, अगर कहीं हम मिलजुल करके समझने की कोशिश करें, हम ये क्यों मान लेते हैं कि हम सब कुछ समझ गए हैं या हम सब कुछ किसी को समझा सकते हैं। रचना के साथ में ऐसी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। चल लेट्स गो सत्य, लेट्स गो। विनोद जी का बहुत बहुत आभार है कि हमें बातचीत श्रवण करने का मौका दिया और आपका कि आपकी मौजूदगी में ये सब हो पाया। बहुत धन्यवाद। Thank you everyone for being so patient. We'd like to thank